Hello students, this is topic 9 and the topic is velocity time velocity time graph. Consider a simple case. Let there is a straight line between V and T. Then on the basis of this graph we can say that velocity is increasing with relative to time. As the time passes, velocity increases continuously. So, as we discussed in previous topic also, that two terms are important on the basis of a graph. These two terms are area of a graph, and second is slope of graph. ये बात हमने पिछले सेक्शन में भी डिस्कस की थी कि xt ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी फाइंड आउट होती है, बट इसका एरिया कोई बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता. लेकिन vt ग्राफ में दोनों टर्म इंपॉर्टेंट होते हैं, द एरिया ऑफ ग्राफ एंड स्लोप ऑफ ग्राफ. बोथ टर्म आर इंपॉर्टेंट इन अ vt ग्राफ. पहले समझें कि अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप tan थीटा कैलकुलेट करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्राफ के लिए, देन इट विल रिप्रेजेंट एक्सेलरेशन, because acceleration is known as velocity by time and slope represents the same, because slope tan theta is perpendicular over base and it is v by t, and we know that v by t is acceleration. So slope of this graph represents acceleration, tan theta. Slope tan theta of this graph represents acceleration. And the second term, area along t axis of this graph, represents total displacement covered by the particle in a particular time interval. Total displacement in time t equal to area of the graph. So vt graph is important graph. Its area as well as slope both are important in kinematics. इस ग्राफ के एरिया से हम फाइंड आउट करते हैं कि पार्टिकल ने एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल t में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, और इसके स्लोप से हम ये इंफॉर्मेशन ले लेते हैं कि जिस पार्टिकल पर हम क्वेरी कर रहे हैं वो कितने मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से प्रोसीड है, कितना एक्सेलरेशन से वो मूवमेंट ले रहा है. सो ग्राफ एरिया एंड स्लोप बोथ आर इंपॉर्टेंट इन वीटी ग्राफ. सो वीटी ग्राफ provides dual information. Its area is important as well as its slope also. Slope and area both are important in VT graph. Some other graphs of VT category are, let us consider that a graph, VT graph, which is plotted between velocity and time, and the graph is on x-axis, and the second one is again a VT graph and a line parallel to x-axis, parallel to time axis. Then there is a difference between these two graphs. What is the difference? Consider it. In first graph, if the line is on x-axis, it means velocity is always zero. As the time passes, velocity remains at 0 meter per second. It means particle is at rest. This is the graph for a particle at rest. But second graph, which is at a distance along v-axis, suppose this value is 10 meter per second, then this second graph represents a particle moving with consistent velocity 10 meter per second. So VT ग्राफ में ग्राफ अगर टाइम एक्सिस के पैरेलल है तो दो कंडीशन अराइज होती हैं यहाँ पर. वो टू कंडीशंस ये हैं कि इफ द ग्राफ इज ऑन एक्स एक्सिस देन इट रिप्रेजेंट्स अ पार्टिकल एट रेस्ट, बट इफ द लाइन इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस then it will represent a particle who is moving with velocity 10 meter per second continuously. Its velocity is fixed 10 meter per second and this particle is at rest. So अगर line axis time axis के पैरेलल है तो ये रेस्ट भी हो सकता है और एक ऐसा पार्टिकल भी हो सकता है जो कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है. और इससे जस्ट पहले जो हमने ग्राफ दिया कि अगर ग्राफ को स्लोप के साथ प्लॉट किया गया है तो इसके मायने हैं कि पार्टिकल एक कंसिस्टेंट और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ट्रेवल कर रहा है. तो ये एक्सेलरेटेड मोशन, देन एक्सेलरेटेड मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन and the first one is at rest, particle is at rest. If the line is plotted with some slope but not from origin, if the line starts from
at any point other than origin between time and velocity, that it means that the particle start with some velocity, not from rest. ये ग्राफ रेस्ट से स्टार्ट पार्टिकल को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि जब टाइम जीरो था तो पार्टिकल उस समय भी किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रहा था। तो ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से सेकंड वेलोसिटी तक का ग्राफ है, ये जीरो से एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक का ग्राफ है। बोथ रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ अ पार्टिकल। सिमिलरली, if a graph is plotted in this manner, that again this means that velocity is increasing continuously. Velocity is increasing continuously and but not uniformly. Velocity is increasing continuously but not uniformly. आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे पार्टिकल की वेलोसिटी के इंक्रीमेंट का रेट बढ़ता जा रहा है। सो दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, non-uniformly accelerated motion. It means this graph represents a particle whose acceleration is varying. This graph represents a particle whose acceleration is not fixed, it is varying. Acceleration is increasing continuously, and similarly if you plot a graph like this, then this is on also a non-uniformly accelerated motion. But in this graph, acceleration is decreasing continuously, accelerated motion, but the acceleration is decreasing continuously. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पार्टिकल का एक्सेलरेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू इतनी है और बाद के किसी टाइम इंटरवल में एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम इंटरवल के लिए थोड़ा डाउन है। इट मीन्स पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, उसमें एक्सेलरेशन है बट एक्सेलरेशन धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बट एक्सेलरेशन इज डिक्रीजिंग विथ टाइम। दिस इज नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बट एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। हियर एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग एंड वी कैन सी दिस बाय टेकिंग टू equal time intervals in the graph. In this part the velocity is increasing this much in the same time, and in this part it increases this much. So this is non-uniformly accelerated motion and acceleration is increasing continuously, and this is also non-uniformly accelerated motion but acceleration is decreasing continuously. यहाँ पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है, इसे कई बार स्टूडेंट रिटार्डिंग मोशन कंसीडर कर लेते हैं, बट ये एक गलत कंसेप्ट रहेगा। ये रिटार्डिंग मोशन नहीं है, ये एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है, बट इसमें एक्सेलरेशन कंटिन्यूअसली डाउन होता जा रहा है। एक्सेलरेशन के कंटिन्यूअसली डाउन होने और रिटार्डेशन में डिफरेंस होता है। रिटार्डेशन मींस द वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली इज नोन एज रिटार्डेशन, but here acceleration is decreasing continuously, velocity is increasing continuously. So velocity, this is not retardation, it is acceleration, but acceleration is decreasing. Acceleration decreasing और retardation दो अलग अलग वर्ड हैं। Decreasing acceleration के मायने होते हैं कि acceleration धीरे धीरे कम होता जा रहा है, it means velocity increase हो रही है, लेकिन in comparison to previous segment it increases with less speed, with less intervals, less speed. You can say that in first time interval delta t the velocity increases by 10 unit, but in a new time segment it increases only by 8 unit. मतलब बढ़ रही है मगर पहले के कंपैरिजन में अब इसके बढ़ने का रेट कम हो गया है। जबकि रिटार्डेशन के मीनिंग होते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी जितनी थी अब उससे कम हो गई है। रिटार्डेशन ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा डिफरेंस होता है कम प्रॉफिट होने। जैसे एक बिजनेसमैन किसी कंपनी को रन कर रहा है, अपने प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर में उसने 50% लेस प्रॉफिट अर्न किया, और एक दूसरा बिजनेसमैन जो ये कहता है कि उसे लॉस हुआ। सो द डिफरेंस बिटवीन लॉस एंड लेस प्रॉफिट is same as the difference between non-uniformly accelerated motion where acceleration is decreasing and retardation. Acceleration decreasing कैटेगरी का है और रिटार्डेशन ये दो अलग अलग चीजें हैं, और ये डिफरेंस वैसा ही है जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया
कि एक बिजनेस में कम प्रॉफिट होना और एक बिजनेस में नुकसान हो जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। वैसे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दो अलग अलग बातें हैं। रिटार्डेशन के मायने हैं कि वेलोसिटी पहले के कंपैरिजन में डाउन जा रही है, और डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के मायने हैं कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन अब ये उस स्पीड के साथ इंक्रीज नहीं हो रही है जैसा पहले होती थी। पहले इसका इंक्रीमेंट ज़्यादा रैपिड था, ज़्यादा फास्ट था, अब इसका इंक्रीमेंट उतना फास्ट नहीं है। सो दीज आर द ग्राफ्स between velocity and time. This graph represents a particle moving in a straight line with acceleration, non-uniform acceleration with accelerated motion. These are uniform, and this represents a particle at rest. The graph of the area of this graph represent, these graphs represent the displacement covered by the particle in a particular time, and slope represents the acceleration. One thing is also important in these graphs. Consider that if a graph between v and t is like this, if a graph between velocity and time is like this, and this line represents the motion of the particle in terms of velocity and time, this time is 0, and this is 5, and there is a point which is 8, suppose this is 8 seconds. Then by this graph, if question is to find out the displacement covered by the particle, displacement traveled by the particle in this time interval of 8 seconds, then we should calculate the area of these plots. So how we can do this? Understand this by example. This is suppose this is 10, and this is 10, this is 5, this is 8, and let this is 6, suppose. Then we have to calculate total displacement covered by the particle in 8 seconds. Then the starting velocity of the particle is 10, and it becomes 0 in 5 seconds. Total displacement covered by the particle in this much time will be 1/2 base into height. It is 25 meter. So displacement covered by the particle in first 5 seconds is 25 meter. After that it turns its direction. ग्राफ अगर वेलोसिटी टाइम डाउनवर्ड चला जाता है तो इसके मायने हैं कि पार्टिकल अभी तक किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा था, उसकी वेलोसिटी 0 होने के बाद उसने अपनी डायरेक्शन को टर्न किया और अब वो वापस इसी तरफ लौट रहा है. So velocity is 10 at start. After 5 seconds it will become 0, and it turns its direction after next 3 seconds. In next 3 seconds displacement covered by the particle is half into base into height 6, it is 9 meter. So in first segment total displacement is 25 meter, it is 9 meter in the next segment. This is 25 meter, this is 9 meter. So net displacement covered by the particle is plus 25 minus 9 is equal to 16 meter. यहाँ पर ये बात जो हम आपको कंसिडर कराना चाहते हैं वो यही है कि अगर ग्राफ नेगेटिव साइड अप्रोच करता है तो इसके मायने हैं कि अब पार्टिकल रिवर्स अपनी डायरेक्शन में लौट रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसे में डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव साइड चला जाए तो उसे माइनस किया जाएगा. सेम क्वेश्चन में अगर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 8 सेकंड, then distance covered by the particle in 8 seconds will be the sum of these two, it will be 34 meter. So distance covered by the particle in this problem is 34 meter, but displacement will be 16 meter only. So this is VT graph. अगर velocity time graph नेगेटिव साइड मूवमेंट लेता है तो इसके मायने हैं कि पार्टिकल ने अपने को रेस्ट में स्टॉप करके अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लिया है. दिस इज लाइक दिस, अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग कंटिन्यूअसली, एंड आफ्टर स्टॉपेज इट रिटर्न्स इट्स डायरेक्शन एंड ट्रेवल्स टुवर्ड्स द इनिशियल पॉइंट कंटिन्यूअसली. सो दिस इज 25 मीटर पॉजिटिव, एंड आफ्टर द स्टॉप इन इट्स मोशन it returns its direction and travel 9 meter along the initial point. So total displacement will be 16 meter only, whereas distance is 34 meter in the example. So this is the idea of VT graph. इसके slope से आप acceleration calculate कर सकते हैं और इसके area से आप displacement calculate कर सकते हैं. एक बात और ध्यान दें, इस ग्राफ का slope obtuse है
tan theta is negative in this case, so this graph represents retardation. The particle is moving with some retardation. It means its velocity is decreasing from 10 to 5. But after that, if we consider the next part of the graph, then its velocity is increasing continuously now with time, but along negative side. So this part is again acceleration. If you consider only numerical value, then this is accelerated motion, but this part is retarding motion. So this line is रिटार्डिंग मोशन एंड दिस इज एक्सेलरेटेड मोशन. ये बात क्लियरली समझने के लिए मैं फिर वही एग्जांपल आपको दूंगा कि आप इसको एक मिरर कंसीडर करके इस लाइन का एक रिवर्स प्लॉट बनाएं और इसका स्लोप देखें. दिस स्लोप इज और एक्यूट, सो दिस रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने लायक है कि फर्स्ट पार्ट जब वेलोसिटी 10 to 0 आई है फर्स्ट 5 सेकेंड में, तब तक पार्टिकल का मोशन अंडर रिटार्डेशन है, एंड आफ्टर दैट it is moving with some acceleration in the negative side. कोई पार्टिकल नेगेटिव साइड ट्रेवल कर रहा है, इसके ये मायने नहीं है कि वो रिटार्डेड है. यहाँ पर हम देखते हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी 0 होने के बाद उसने अपनी डायरेक्शन टर्न की और रिटर्न होके एक वेलोसिटी 6 को एक्वायर किया इन नेगेटिव साइड. इट डजंट मैटर द वेलोसिटी इज आइदर इन नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड. न्यूमेरिकल वैल्यू इज इंपॉर्टेंट ऑलवेज. सो द मोशन अप टू 5 सेकंड इज रिटार्डिंग मोशन एंड आफ्टर दैट इट इज एक्सेलरेटेड. एक बात बिल्कुल ध्यान दें, सिमिलर एग्जांपल ग्रेविटी के साथ भी होता है. जब हम किसी पार्टिकल को अपवर्ड थ्रो करते हैं, देन इट इज एग्जांपल ऑफ रिटार्डेड मोशन. बट आफ्टर द स्टॉप एट द टॉप पॉइंट, पार्टिकल कम्स डाउन टू द अर्थ एंड इन दैट केस वी से दैट इट इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो कोई पार्टिकल रिटार्डेड है, एक्सेलरेटेड है, ये बात हमने अपने प्रीवियस सेगमेंट में भी क्लियर की है. बट एक बार फिर बताते हैं कि पार्टिकल रिटार्डेड या एक्सेलरेटेड ये इस बात पर डिसाइड होता है कि उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन से कंसीडर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है. अगर किसी पार्टिकल का वेलोसिटी एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है, देन इट डजंट मैटर आइदर इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन और नेगेटिव डायरेक्शन. इन बोथ द डायरेक्शंस इट इज कंसीडर्ड एज एक्सेलरेशन. जैसे ग्रेविटी अगर किसी पार्टिकल को टॉप टू बॉटम मूव कराती है, देन इट इज एक्सेलरेशन, इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. चाहे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर कीजिए या पॉजिटिव कंसीडर कीजिए. जब एक स्टोन किसी टावर के टॉप से डाउन आता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन कंसीडर किया जाएगा, और जब वो ऊपर जाता है तो वो रिटार्डिंग मोशन. चाहे आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माने या डाउनवर्ड को नेगेटिव माने, इस बात का कोई फर्क नहीं होता है. सो दिस इज द आइडिया अबाउट वेलोसिटी टाइप ग्राफ. थैंक यू.